All right. All right. So in the last class, what we were done with were the adaptations of leaf, and we had to start off with the rates of photosynthesis. Right? Now, देखो, rate हमारे पास क्या होता है? Rate is any work done per unit time. ठीक है? तो अब अगर हम लोग rates of photosynthesis के बारे में बात करें तो भाई हम लोग how are we going to calculate the rates of photosynthesis? We're going to calculate the volume of oxygen that is released off per unit time. Now, uh, how do we set up the apparatus, simple laboratory apparatus? We took our aquatic plant, and what we did was we put a funnel over it and we attached a delivery tube with the funnel. Now, then what we did was we put a gas syringe at the end and exposed the plant to light. So as soon as we are going to expose the plant to light, what's going to happen is going to start the process of photosynthesis. Now, as it's starting photosynthesis, what's happening is it's giving of oxygen. Oxygen is very slightly soluble in water. So what happens is the bubbles of oxygen that are released go into the delivery tube and into the gas syringe. अब जितना हमारे पास in a particular time ऑक्सीजन कलेक्ट होगा, ये सिरिंज का प्लंजर है, ये पीछे की तरफ जाता रहेगा. ओके, आई विल गेट द होल प्लंजर. सो विल ट्राई अगेन. सो ये प्लंजर जो होगा ये पीछे की तरफ जाता रहेगा और इस एरिया के अंदर हमारे पास कौन सी वाली गैस फिलअप होती जाएगी? ऑक्सीजन. ठीक है. अब नाउ हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? हमारे पास फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला जो होगा वो क्या बनेगा? Well, stay back, I'll let you know. So हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिवन ऑफ यूनिट्स क्या होंगे ऑक्सीजन के? सेंटीमीटर क्यूब. एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय टाइम. ठीक है. अब लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैंने पहले क्या करा? I wanted to see the effect of light intensity on the rate of photosynthesis. So first I use a bulb that had the power of 3 watts. हमारे पास जो वॉटेज होती है, वॉटेज का मतलब क्या होता है कि भाई कितनी व्हाट इज WATT, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर. तो जितना पावर हम लोग बढ़ाते जाते हैं उतना हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ती जाती है. ठीक है. So once I increase the watt, I put the bulb having a power of 3 watts. तो मैंने क्या देखा? When I was using the bulb having a power of 3 watts, it for in 30 minutes, the plant was able to give off 15 centimeter cube of oxygen. So again, मैंने क्या करा? I put my values like this कि भाई अगर मेरे पास 15 centimeter cube of oxygen 30 minutes में रिलीज हो रहा है तो रेट कैसे निकालूंगा? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिवन ऑफ पर यूनिट टाइम, that's coming out to be 1/2. So this tells me that at 3 watts of light I'm the rate of photosynthesis that I'm getting is 0.5 centimeter cube per minute. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 15 मिनट, अब 30 मिनट के अंदर 15 cm क्यूब निकले तो पर मिनट कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्ट हो रहा होगा. Then what I did was I repeat the whole experiment, but this time I changed the wattage of the bulb. I doubled it. I brought it to about 6 watts. अब when I used a 6 watt का bulb, तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास 30 minutes में in the very same time of 30 minutes मेरे पास 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हुआ. मेरे पास 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हुआ राइट हियर. तो 30 डिवाइड बाय 30 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 1 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट. इससे मुझे क्या पता लगा कि if I'm increasing the wattage of light or the light intensity, to be more specific, the rate of photosynthesis is also increasing. अब अगर हम लोग कॉमन सेंस लगाएं तो हमें पता है कि ऐसा हो क्यों रहा है. This is happening because the photosynthesis requires light. देखो बेटे लोग एक बात याद रखिएगा, हमारे पास जब भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दिस इज समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम ए लेवल्स, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जस्ट फॉर द नॉलेज फॉर एटीपी दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो ओनली. इसको समझिएगा बस.
होता क्या है बच्चों, जितना हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस हमारे पास जो है वो दो स्टेप्स में हो रहा है। हम आई थिंक ये पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में दो रिएक्शंस हो रहे होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। और ये व्हाट रिएक्टेंट डज इट मेक यूज ऑफ, हमारे पास दो रिएक्टेंट्स है ना, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। लाइट इज नीडेड टू ब्रेक डाउन वाटर। लाइट हमें क्यों चाहिए होती है? ताकि वाटर ब्रेक डाउन हो सके। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है, अगेन व्हाट इज स्ट्रोमा? इट इज द फ्लूइड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। उसके उसको कैरी, वो उसके अंदर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो हो रहा होता है, इट मेक्स यूज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों प्रोसेसेस होंगे तो फिर हमारे पास रेट फोटोसिंथेसिस पूरा होगा। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ लाइट को इंक्रीज करूंगा ना, तो मेरे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ज्यादा होगा। जब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का एक फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट बढ़ रहा है, तो हमारे पास रेट भी बढ़ जाएगा। राइट। नाउ कीप दिस इंफॉर्मेशन एट द बैक ऑफ योर माइंड। मैं समझता भाई साहब, इस पर देखो देखो कोई मसला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, फोटोसिंथेसिस दो स्टेप्स में हो रहा है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में लाइट इस्तेमाल हो रही है और वो क्या कर रही है, वो वाटर को ब्रेक डाउन कर रही है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है। ठीक है। तो अगर मैं लाइट इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा एंड ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के ऊपर भी फर्क आएगा। जस्ट कीप दिस इंफॉर्मेशन थोड़ी सी एट द बैक ऑफ योर माइंड। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जो आगे करने जा रहे हैं उसके लिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब नाउ दैट वी नो कि photosynthesis is dependent on many or on more than one factors besides light। तो लाइट के अलावा क्या कोई और फैक्टर है जिसके ऊपर फोटोसिंथेसिस का रेट डिपेंड करता हो? हाँ भाई, तीन दो और फैक्टर्स हैं। देयर आर टू मोर फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स। वेरी गुड। सबसे पहले हानि ने मुझे बताया कि सर टेम्परेचर नहीं, तैयब तैयब ह्यूमिडिटी जो है ना, वो ट्रांसपिरेशन के रेट को वो करती है। चलो वाटर भी हो गया, ठीक है, बट वी डोंट इंक्लूड वाटर हियर। हम वाटर को यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहे फिलहाल। ठीक है। इट्स ओके, इट्स ओके। कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड, कोई मसला नहीं है मेरा बेटा। तो अब अगर इफ वी लिस्ट डाउन the factors affecting rate of photosynthesis, we'll be doing experiments to find out which factor is more effective. CO2 and temperature, very good Zino. अच्छा, उससे पहले एक चीज देख लीजिए, सॉरी मैं भूल जाऊंगा वरना। uh, this is another image of the apparatus that is shown। तो मुझे पासवर्ड्स भेज दिया करो so that I can tell you over the voice note। हाँ श्योर श्योर, सेंड देम ओवर। अच्छा अब देखो, इसने वही करा हुआ है। वहाँ यहाँ से हमारे पास लाइट सोर्स आ रहा है एंड इट्स गोइंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर प्लांट। और ये प्लांट से ऑक्सीजन जो भी रिलीज हो रही है गैस से रिज में जाके कलेक्ट हो रही है लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, वन थिंग दैट आई ऑल लाइक दैट आई ऑलवेज शेयर विद माय स्टूडेंट्स, दिस पर्टिकुलर thing that the examiner has put or the publisher has put right here, this particular thing is called as a heat shield। Why do we put a heat shield? Is because most of the light sources that we are giving or that we are using, they use light bulbs. Besides the light, these bulbs also emit heat। तो उस हीट को ट्रैप करने के लिए, ताकि इस पर्टिकुलर प्लांट का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, we use a heat shield। Heat shield is used to absorb heat।
And where would this heat come from? The light source. ठीक है? अच्छा है. Now that we know this, let's talk about the factors affecting rate of photosynthesis. Again, as all of you told me कि सर तीन factors हैं. एक है लाइट, लेकिन लाइट की क्या बोलेंगे हम लोग? हम कहेंगे लाइट इंटेंसिटी. दूसरा चलो उसको नीचे करते हैं हम लोग. आई टेल यू व्हाई. दूसरा जो फैक्टर है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है. और तीसरा जो फैक्टर है वो टेम्परेचर है. अच्छा, लाइट इंटेंसिटी कौन से वाले रिएक्शंस को अफेक्ट करेगी? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को. CO2 कंसेंट्रेशन किसको अफेक्ट करेगी? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को. और ये जो टेम्परेचर है, इट विल अफेक्ट द रेट ऑफ दोज एंजाइम्स that are taking part in photosynthesis. Now, please remember, no biological process, no biological reaction can occur without the help of enzymes. कोई भी केमिकल रिएक्शन जो मेरी बॉडी के अंदर हो रही है, बॉडी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, वो एंजाइम्स के बगैर नहीं हो सकता. Hence, that is why temperature regulation in organism is so important. तो अगर हम लोग ये भी देखें तो हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, मेरे पास क्योंकि फोटोसिंथेसिस आल्सो अ केमिकल रिएक्शन दैट्स गोइंग ऑन इन ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स. उनके लिए भी हमें इन टेम्परेचर कांस्टेंट एक रेगुलेट करना पड़ता है ताकि जो एंजाइम्स फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं वो डीनेचर नहीं हो जाए. ठीक है. अच्छा, अब लेट्स डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट. हम सो अगेन ये थोड़ा सा ATP की तरफ आ रहे हैं हम लोग. सो लेट्स डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है. इट्स कॉल्ड एज रुबिस्को मेरा बेटा. ये A2 के अंदर पढ़ोगे दिशा बेटे. नेम ऑफ द एंजाइम, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ये सारे A2 के अंदर हम लोग. सेकंड टॉपिक I'll show you how photosynthesis looks like in A2. Just like this. All right. So don't worry about it right now. Come back here. अच्छा. Yes, correct, yes. But it's fun. It's fun to talk about these things in detail. मजा आता है, मजे का टॉपिक है. अच्छा, so let's set up an experiment to find out the rate. Yes, mostly the light independent reaction, Hania, but दोनों को वो खुद ब खुद याद आता है. देख रहा, once you go with it, you get a hang of it. Trust me. अच्छा खैर. So you're welcome मेरे बच्चा. So I want to see the effect of different light intensities on the rate of photosynthesis. तो मैंने क्या करा, जिस तरीके से हम लोग ने ऊपर वाला एपरेटस बनाया हुआ है ना, I took 7 of these apparatuses. ठीक है. And what I did was I kept these apparatuses at different light intensities. I kept these apparatuses at different light intensities, and whatever the data that I was getting, I plotted on a graph. तो मैंने जो ग्राफ बनाया उसमें मेरे पास x एक्सिस के ऊपर लाइट इंटेंसिटी आ गई. इसको हम लोग वॉट्स में ले रहे हैं. y एक्सिस के ऊपर मेरे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आ गया. यूनिट्स क्या ले लेंगे हम लोग? सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट्स. हाँ, वॉट्स. वही, बिकॉज वॉट इज द यूनिट फॉर पावर, राइट? जितना पावर इंक्रीज करते जाओगे उतना क्या बढ़ता जाएगा बेटे? इंटेंसिटी बढ़ती जाती है. हमारे पास वी यूज LED बल्ब्स, यूज दी बल्ब्स दैट वी हैव, उसके अंदर भी जो ज्यादा ब्राइट होता है उसकी वोल्टेज ज्यादा होती है. अच्छा, तो आई टुक 7 डिफरेंट लाइट बल्ब्स ranging from जीरो, मतलब जीरो होगा तो मैंने आई केप्ट द प्लांट इन द डार्क. 1 2 3 4 5 और 6 वॉट्स तक मैंने बल्ब रखे. हाँ, एक्सेस कैसे प्लॉट करना है? देखो बेटे, एक्सेस के ऊपर हमारे पास दो चीजें होती हैं. एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल
और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. When I was in O levels, I remembered it by dry mix. Dependent variable on the y-axis, independent variable on the x-axis. ठीक है. अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा वाला इंडिपेंडेंट है, कौन सा वाला डिपेंडेंट है? अब मुझे एक बात ही बताओ, अगर मैं लाइट इंटेंसिटी चेंज करूंगा, नहीं, दे आर नॉट, दे कैन बी आर्बिटरी यूनिट्स एज वेल. लेकिन क्योंकि हम लोग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्ट कर रहे थे सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो हमारे यूनिट्स ये आ रहे हैं. अच्छा, खैर, अब मुझे एक बात ही बताओ कि अगर मैं लाइट इंटेंसिटी चेंज करूंगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चेंज होगा, या फिर फोटोसिंथेसिस का रेट चेंज हो रहा है तो मेरे बल्ब के अंदर पावर बदल रही है? वेरी गुड. जितना मैं लाइट इंटेंसिटी को चेंज कर रहा हूँ, उसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो ज्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है? तो here what is depending on the light intensity? Rate of photosynthesis. तो वो कौन से वाले एक्सिस पर आ जाएगा? y के ऊपर. इसको कौन चेंज कर रहा है? लाइट इंटेंसिटी. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन चेंज कर रहा है? लाइट इंटेंसिटी. तो ये कौन से एक्सिस पर आ जाएगी? x के ऊपर. ठीक है. सो लोग एटीपी के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे ना, तो मैं इसको दोबारा रिपीट करवाऊंगा, डोंट वरी. अच्छा, खैर 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 खैर, मूविंग ऑन. अच्छा, अब मैंने क्या करा, मैंने 7 अलग अलग एपरेटस लिए एज शोन अबव, and I carried out my experiment. So let's call the first experiment as experiment 1. Even though I was increasing my light intensity, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा. In experiment 1, I kept the temperature as the room temperature of 25 degrees Celsius. And I kept the carbon dioxide concentration as 0.04% of CO2, जो कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंसेंट्रेशन है. तो मैंने क्या देखा, मेरा जो ग्राफ था वो कुछ यूं बना. राइट. सो इनिशियली, अब देखो इस ग्राफ को दो में डिवाइड करते हैं ना. मैंने कहा मेरे पास एक जगह के ऊपर स्लोप आ रहा है, दूसरी जगह के ऊपर एक ग्राफ कांस्टेंट हो रहा है, प्लेटू बन रहा है. आप इसको देखो, मैं इसको ग्राफ को एक बार समझा रहा हूँ. So if you have any problems, we'll just go over it once again. Don't worry. अब इसको देखिएगा. मैंने कहा as I am increasing the light intensity from 0 watts to 3 watts, the rate of photosynthesis is also increasing. अब इसको दोबारा देखो. मैंने क्या कहा था कि भाई 0 वॉट के ऊपर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 0 था. जब मैंने दूसरे वाले एपरेटस में 1 वॉट की लाइट लगाई तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इतना आ रहा था. जब मैंने तीसरे वाले एक्सपेरिमेंट में लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई तो मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ गया. In the third experiment, in the third, sorry, apparatus, where the light intensity was 3 watts, वो और बढ़ गया. लेकिन after 3 watts of light, no matter how much light intensity I increased, no matter how much light intensity I increased, my rate of photosynthesis did not increase. तो मैंने कहा कि यार मैं लाइट इंटेंसिटी तो बढ़ाते जा रहा हूँ 3 वॉट्स के बाद, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रहा. इसको आई एक्सप्लेन दैट, डोंट वरी मेरा बच्चा. ठीक है, आई एक्सप्लेन. अच्छा, तो अब मुझे बताओ, एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ. अभी हम लोगों ने 3 फैक्टर पढ़े ना, तो क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सिर्फ लाइट इंटेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है? नहीं, वो तो CO2 कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, वो तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है. तो अब 3 वॉट्स के बाद लाइट इंटेंसिटी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई लाइट इंटेंसिटी तो बहुत ज्यादा हो, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन तो बहुत तेजी से हो रहे हो, लेकिन उन रिएक्शंस को जिनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मे बी दिस कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट इनफ. मे बी द enzymes, they are not having the optimum temperature to work.
to carry out the reactions that they're carrying out so that the rate of photosynthesis can increase. तो हम लोग कहते हैं, वेरी गुड मेरा बच्चा। तो हम लोगों ने कहा कि भाई अगर अब देखो, अब इसको दोबारा एक्सप्लेन करो मैं ग्राफ को, कि as the light intensity increases from 0 to 3 watts, the rate of photosynthesis also increases. After 3 watts, increase in the light intensity has no effect and the rate becomes constant. This is because after 3 watts of light, both carbon dioxide concentration and temperature have become what? Limiting factors. So can anyone tell me what a limiting factor is? It's not something that, please don't say it limits the rate of photosynthesis. It limits the rate of reaction. At 4 मेरा बच्चा कांस्टेंट है ना, उतना ही आ रहा है, तो 3 पर आ रहा है, 3 पे भी इतना आ रहा है, 4 पर भी इतना आ रहा है। आफ्टर 3 हम लोगों ने क्या दिया ना मेरा बेटा। अच्छा, सो व्हाट्स अ लिमिटिंग फैक्टर? तो हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर इज एनी वेरिएबल that prevents the rate from increasing. अब मेरे बच्चे लोग मुझे एक बात ये बताओ, आफ्टर 3 वॉट्स मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम तो नहीं हो रहा है ना? इट इज नॉट डिक्रीजिंग, कांस्टेंट हो गया है, ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है। here हाँ, here CO2 and temperature may be the limiting factor। अब देखो